Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to study section 154 of the Code of Criminal Procedure 1973. This particular section is dealing with the information in cognizable cases. पर ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर से रिलेटेड. आप लोगों को आना चाहिए ये पर्टिकुलर सेक्शन. अब क्या बात करता है ये देखो. हेडिंग क्या है इसकी? इंफॉर्मेशन इन कॉग्नाइजेबल केसेस. पहली बात मुझे ये बताओ कि कॉग्नाइजेबल केसेस होते क्या हैं. इट इज डिफाइंड एनीवेयर अंडर सीआरपीसी? इज इट डिफाइंड? Yes, it is defined under CRPC. CRPC मतलब Code of Criminal Procedure 1973. Section 2C of the CRPC defines cognizable case. Cognizable case means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. जहाँ पे बिना वारंट के पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन मीन्स इट इज डीलिंग विद द सीरियस ऑफेंसेस कॉग्नाइजेबल केस. अब सेक्शन 154 बोलता है सबसेक्शन 1 एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant. And every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. Now this particular section is very important. Remember this. What it says. It is dealing with the first information report in the cognizable cases. क्या defined है FIR कहीं पे भी CRPC में? No, it is not defined anywhere under the CRPC. FIR का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? हम बोलते हैं ना FIR कर दी, तो FIR का मतलब क्या है? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? पहली बात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंफॉर्मेंट इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन is what said to be the principal object of the FIR. Remember this. The statement of the informant. Informant कौन? जो information दे रहा है. The statement of the informant as recorded under section 154 is usually mentioned in practice as the first information report and popularly उसे हम कहते हैं first information report. Remember this again. अब 154 के अंदर it is dealing with the certain important points. You people should know about those important points. It says that every information, कोई भी information जो cognizable offense से related है, सेक्शन 2C के अंदर देखिए cognizable offense. कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, अगर वो ओरली दी गई है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, OIC को. OIC कहीं पे डिफाइंड है CRPC के अंदर? बताओ मुझे, सर्च करो और बताओ सेक्शन कमेंट बॉक्स के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. पहला ये बोलता है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी गई है, हु इज हैविंग द जुरिस्डिक्शन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, अगर वो इंफॉर्मेशन ओरली दी गई है उस ऑफिसर को,
वो रिड्यूस की जाएगी, इट शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय दैट ऑफिसर हिमसेल्फ और अंडर हिज डायरेक्शन। या तो वो खुद उसको राइटिंग में लिखेंगे या फिर ही विल बी डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट टू हिम to write that particular information, right? So means the information which is given to an officer in charge of a police station, जिसके पास jurisdiction है for investigating the particular case, जो भी केस है, कौन सा केस है, cognizable केस, ठीक है, क्योंकि 154 उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अगर वो ओरली इंफॉर्मेशन दी गई है उनको टू दैट पर्टिकुलर सच ऑफिसर, वो ऑफिसर क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को he will be reducing it to writing. Now, information if given in writing or if reduced to writing, as aforesaid यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन ओरली दी इंफॉर्मेंट ने, उसको क्या करेंगे OIC, उसको he will be reducing it to writing। अब उन्होंने उसे लिख दी इंफॉर्मेशन को राइटिंग में। नाउ इंफॉर्मेशन लिख दी अबाउट द कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, उसके बाद क्या होगा, वो उसे रीड करेंगे इंफॉर्मेंट के सामने, जिसने इंफॉर्मेशन दी थी कि आपने ये बताया, जो आपने पॉइंट्स जो भी उसने बताए हैं उसके सामने रीड ओवर करेंगे। रीड ओवर करने के बाद सिग्नेचर होंगे इंफॉर्मेंट के, जिसने उस इंफॉर्मेशन को दिया है। व्हाट सिग्नेचर, it will be signed by the person giving the information। उसके बाद क्या करा जाएगा, the substance of the information is then to be entered by the police officer in a book kept by him in the prescribed form। See, this book is called station diary or general diary। See section 44 Police Act 1861 for this। जो पुलिस क्या करेंगे, देखो पुलिस ऑफिसर ने जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें दी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को जो भी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट ने आकर दी, पुलिस ऑफिसर उसको किसमें, ही विल बी कीपिंग ऑल दोज इंफॉर्मेशन ही विल बी एंटरिंग ऑल दोज इंफॉर्मेशन इन अ बुक केप्ट बाय हिम इन द प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। नाउ उस बुक को कहा जाता है स्टेशन डायरी और जनरल डायरी। फॉर दिस स्टेशन डायरी और जनरल डायरी काइंडली सी सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861। अब इसके बाद क्या होगा, नाउ प्रोविजियो क्या बोलता है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, वो बोलता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कोई एक विमेन देती है जिसके अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A, यानी कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, ये हर्ट से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है, यू विल बी डीलिंग विद सेक्शन 326, 326A, 326B is also dealing with voluntarily throwing or attempting to throw acid। 354 आपने पढ़ा होगा, it is dealing with assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty। 354A further on it talks about the sexual harassment and punishment for sexual harassment। 354B deals with assault or use of criminal force to women with the intent to disrobe। तो ये आप देख सकते हो, ये ऑफेंसेस हैं विमेन के अगेंस्ट जो भी होते हैं। देन वो इंफॉर्मेशन अगर एक इफ इट इज गिवन बाय द विमेन, देन इट such information shall be recorded by the women police officer or any women officer। तो उस इंफॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड करेंगी, कौन, it will be recorded by a women police officer or any women officer। it is also saying any women officer as well। now dealing with further on एक और प्रोविजो ऐड करा गया है जो बात करता है अबाउट दी, सबसे पहले ए वाला ए क्लॉज बोलता है कि अगर किसी पर्सन, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है किसी पर्सन के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 354, 354A से लेकर 354D, यू पीपल कैन सी 376A से लेकर 376DB तक, या 509 सॉरी, और 376E, यू पीपल कैन सी योर सेल्फ इन सेक्शन के अंदर अगर होता है इंडियन पीनल कोड के अंदर, और वो पर्सन जो है टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है,
तो ऐसी सिचुएशन पे जो इन्फॉर्मेशन जो उस पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी पुलिस ऑफिसर द्वारा उसके रेसिडेंस पे जहाँ पे वो पर्सन रहता है, और at a convenient place or at a convenient place of such person's choice, उस पर्सन के चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी वो बोले पुलिस ऑफिसर जाकर वहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे उस पर्सन के प्रेजेंस पे, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी। सो इन दोनों की मौजूदगी होना ज़रूरी है एज पर सेक्शन 154 का प्रोविजो का 154 सबसेक्शन 1 प्रोविजो ए, इट क्लियरली सेज अबाउट इट। नाउ what B says, clause B says that the recording of such information shall be videographed, और जो यानी कि ये वाला क्लॉज B बोलता है recording of such information shall be videographed, it is adding shall word to it. Now you yourself can signify that it is important. ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है। सी बात करता है दैट द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए और ऑफ सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सून एज पॉसिबल। पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे आफ्टर गेटिंग, जैसे ही पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट लेते हैं वो उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकते हैं उस स्टेटमेंट को, और ताकि अंडर 164 ऑफ CRPC आपने पढ़ा है 164 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, और उनके सामने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड कर सकें, तभी इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर द्वारा उस स्टेटमेंट को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने क्या कर दिया जाता है, ले जा सकते हैं पुलिस ऑफिसर उस इन्फॉर्मेशन को। नाउ subsection 2 what it says that a copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forth free of cost to the informant। जो भी कॉपी है इंफॉर्मेशन की जो रिकॉर्ड की गई है इट शैल बी गिवन 100 सबसेक्शन 1 के अंदर 154 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो भी रिकॉर्ड की गई है पुलिस ऑफिसर जो है ही विल बी गिविंग दैट कॉपी of the information to the informant free of cost. Now subsection 3 says that any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station, अगर पुलिस FIR लिखने से मना कर दे तो उस समय क्या कर सकता है वो पर्सन, then वो पर्सन any person who is aggrieved by the refusal on the part of the police officer in charge of the police station, मतलब कि if he is aggrieved on the part of an officer in charge of a police station to record the information refer to under subsection 1 के अंदर, तो he may send that person aggrieved person he can send the such information in writing and by post to the SP यानी कि superintendent of the police concerned who is concerned, उनको वो क्या लिखेंगे अपना इन राइटिंग इन्फॉर्मेशन लिखकर बाय पोस्ट द्वारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो एग्रीव्ड पर्सन लिखकर भेज सकते हैं। नाउ अब वो पोस्ट वो आफ्टर गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है कि हाँ सच में कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ है, देन ही शैल ईदर इन्वेस्टिगेट, या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केस को या फिर वो अपने बिहाफ में ही कैन direct an investigation to be made by any police officer who is subordinate to that superintendent of the police in the manner as prescribed in the code. So that particular manner has to be followed, and such officer shall have the power of an officer in charge of the police station in relation to that offense, यानी कि जिनको उसके पास सेम पावर होगी लाइक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जिनको सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ने डायरेक्ट कराया कि जाइए और आप क्या करें इन्वेस्टिगेशन करिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज इम्पॉर्टेंट अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC। एविडेंशियरी वैल्यू क्या है FIR की, क्या आपको पता है? सी FIR, दो FIR इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, it can be used to corroborate the informant। लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो आई विल बी अपलोडिंग सून, बट पहले आप इतना ही देखो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द CRPC, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। So this is all about this video, and if you people have any doubt, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. I will be uploading more videos very soon. Thank you so much.